So, very good morning to everyone. We are starting with biology. Hmm? And viewing few beautiful slides that have been prepared by professionals. They have got this from a different team altogether, and they have prepared some beautiful slides. There are total 100 slides that are available with us. We'll start one by one, and this is the session 1. 10th standard के लिए जो session होगा वो 10th मॉर्निंग में एक और रिकॉर्ड होगा, वो भी आप लोग देखिएगा। वो उसमें ज्यादातर आपकी स्लाइड ज्यादा है। तो फर्स्ट, the most important ingredient that the plant has for preparing its own food is chlorophyll, right? And the chlorophyll is present in a plastid that is called chloroplast. Very good. And here are the chloroplasts. These are the chloroplasts. जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, द ग्रीन पिगमेंट दैट हेल्प्स द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये क्लोरोप्लास्ट है सब। Plastids which contain chloroplast. It looks like onion peel. This 5x zoom will make it to 10x. All right, you can see the cells and the जो dark section है, dark region से बेटा वो क्या है? नहीं रे, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। See there are few ये देखो, ये जैसे ये डॉट, अब ये क्या है? नहीं नहीं, अगर ये क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड है, सेल है, तो उसके अंदर क्या डार्क रीजन बोलकर शो होगा? न्यूक्लियस शो होगा यार। क्या क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड? सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। 8 ने पढ़ा है, 7th ने पढ़ा है, अरे सबको ही बताया है सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। वो न्यूक्लियस है वहां पे। ऑलराइट, सो दिस इज द क्लोरोप्लास्ट एट 10x। गोइंग बैक at 5x zoom, chloroplast body. Chloroplast is a plastid that stores chlorophyll, which helps the plant to produce its own food. That makes it autotrophic. Clear? Image mind में fit होगी? Because there will be a test we will be taking based on it. Second, we recently covered a topic with 7th standard that was general discussion regarding reproduction. And in that we talked about pollen grains that are present in the anther. So we have a slide which shows us pollen grains with anthers. You can see anther there. दिख रही है एंथर? और उस एंथर के अंदर, जब एंथर के साथ होल्ड करने वाली, ये सारे पोलन ग्रेन्स है। क्लियर है? दिख रहा है? Some sort of a glitch है वो in the slide. And filament होंगे थोड़े थोड़े। These are pollen grains. Those fly off, pollination करते हैं जो। We have some of them spread over here. The anther and the pollen grain. ये एंथर वाला जोन समझे ना आप कौन सा है? फिलामेंट के ऊपर एंथर होता है, एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन्स अटैच होते हैं। दिस इज एट 5x शिफ्टेड टू 10x। ये एंथर रीजन है और इसके अंदर पोलन ग्रेन्स है।
ये सारी इमेजेस माइंड में एकदम सेट कर लो. These are all pollen grains. Clear? Next, we are having a slide which is, I have already seen this with nail polish and all, but professional staining के साथ हम लोगों ने स्टोमाटा को देखा हुआ है पहले भी, बट इम्प्रोफेशनल स्टेनिंग्स थी. हम लोगों ने उसको स्टेन नहीं किया था, एंड वी हैड स्टोमाटा जिसको हमने बनाया था विद द हेल्प ऑफ नेल पेंट रिमूवर. ये बहुत पहले की बात है. And this is now a stained slide for stomata. What does stomata help in? Taking the carbon dioxide, oxygen. Right. Exchange of gases. ये छोटे छोटे pink sections दिख रहे हैं. Pores. We'll shift it to 10x now. Look at the region, भाई. Hmm? Okay, now we have shifted it back to 10x. Can you see the openings there? These are the stomata cells that help in the plant in respiration. Try to see it at 45x. देखते हैं क्या दिखता है. Yeah. बंद चालू नहीं हो रहा है. वो जूम और जूम इन जूम आउट करते हैं ना, तो ऐसा लगता है लाइक इट्स ब्रीदिंग. देखो, दिस इज स्टेन ना. स्टेन किया हुआ है उसको, नेल पॉलिश नहीं लगाई है बेटा, स्टेन किया हुआ है उसको. स्टेनिंग इज डन विद 2 केमिकल्स. कौन सा है? बहुत बढ़िया. इसलिए ना मुझे ये बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, पता है. स्टेनर्स कौन से? मिथिल ऑरेंज और मिथिल ब्लू. बेटा स्टेनर्स नहीं, 100x पे कुछ दिखेगा नहीं आपको बेटा. यू डोंट नो द स्टेनर्स, राइट? ये स्टेनर्स आपको नहीं पता ना, पहली बार देख रहे हो, राइट? सो दिस इज अ स्टेन स्लाइड, 10 स्टैंडर्ड स्टोमाटा लीफ की स्लाइड. हालांकि 9th के प्रैक्टिकल्स में आती है स्टेट बोर्ड में, बट देन दिस आर द गार्ड सेल्स जो सराउंडिंग है ना. हमारी जो स्लाइड है उसके अंदर गार्ड सेल बहुत क्लियरली हम लोग विजिबल देख पाते थे. इसके अंदर हम लोग स्टोमाटा रीजन को, ये जो स्मॉल पोर्स ओपनिंग है, इसको हम लोग बहुत क्लियरली देख पाते हैं. स्टोमाटा. और वो पिंक रीजन के अराउंड जो ऐसे लिप्स लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है ना, वो गार्ड से इसके बने हुए हैं. दिस रीजन इन 45 is too blurred. Anyway, we'll move ahead with, after stomata we are going to see a plant cell which has got a plant cell. How to differentiate plant and animal cell? Very good, Rudra. It's cell wall. These are
क्लोरोप्लास्ट नहीं है, दिस इज द टीएस सेक्शन ऑफ अ प्लांट सेल। जो डार्क रीजन्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपको पिक्युलरली दिखता है क्योंकि हम लोग एनिमल सेल को भी देखेंगे इसके बाद में तुरंत, सो दैट यू कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल। इफ यू सी देयर इज अ वेरी डार्क रीजन अराउंड, एंड किस तरीके का शेप है इसका? सर्कल, वेरी गुड। स्क्वायर, वेरी गुड। रेक्टेंगल, क्या बात है, रेक्टेंगल है। सर्कल स्क्वायर तो नहीं है, ये पक्का है। हाँ, इसको सर्कल और स्क्वायर दिखाई दे रहे थे भैया। एंड आफ्टर दिस, ये क्लियर हो गया, द स्ट्रक्चर एंड द न्यूक्लियस इन द मिडिल। नाउ वी विल स्विच to animal cells so that we can differentiate between them. हम्म, थाम रे बड़ा। Because we don't have any, walls. Very good. We cannot differentiate it very easily. We don't have any wall. That's why we don't have any appearance of a cell. जो स्ट्रक्चर हम लोग पिक्युलरली स्ट्रक्चर्स को देखने की बात करते हैं, वह एनिमल सेल में हम लोगों को नजर नहीं आ रहा है। This is a complete stained slide of plant cell, but as we can see, we can only spot it on fire. ये सब cells है यहाँ पे, but then keeping it on the try to spot, ये दिखाऊंगा। So well defined, क्योंकि cell wall नहीं है well defined, you just see a region of a patch that is there, right? उतना ही वो निकाल के, जितनी स्किन लगी हुई है उतना ही। क्यूबॉइडल अभी ये इसका नहीं है, एक्चुअल में एनिमल के सेल्स को बनाया गया। एक मिनट, हम लोग इसको और एक 45 पे भी डाल देते हैं। नथिंग टू बी शोन। So no well-defined boundaries, and that is, proving it difficult for us to wave. But as soon as we switch again back to the plant cell, it's crystal clear to us. That is because of a very strong cell wall that is present, which helps us to weave a plant cell more clearly as compared to a animal cell. Try to prepare animal cell once again, but this is our plant cell, which is crystal clear and which is very easy to look into it because of the presence of cell wall, and the dark patches in the middle are called as nucleus. You get into animal cell once again and try to locate them, maybe in the next segment. Now you have plant cell. हम लोगों ने बोला कि it looks like
the onion peel, right? I have onion peel even. कुछ बच्चों ने नहीं देखा है ना, onion peel के cells देखे हैं सबने? Hmm. We'll have onion peel. अपना स्पीड में काम करने की बहुत आदत है। हो गई ऊपर। सेम ऑनियन पील, ऑनियन पील के सेल्स है, सेम है। देयर इज नो चेंज इन द स्ट्रक्चर, क्योंकि प्लांट सेल की जो स्लाइड बनती है ये भी प्लांट का ही सेल है। ओके, एकदम सेम। तो प्लांट के सारे सेल सेम ही होंगे, सबको गार्ड सेल्स सेल वॉल रहेगी एक बार वेल डिफाइंड। दैट्स व्हाई यू हैव द सेम slide which we have in plant cell. Okay, so this is onion peel, and then we have the plant cell as a different region altogether. Then we have budding yeast. Yeast का reproduction कैसे होता है? Hmm. Asexual reproduction by the process of, you always try to see yeast budding. I tried it from many days. Now let's see what these slides have in them. These are actually budding yeasts. Let's zoom it. Zoom it further. थोड़ा सा. Might be we have a with the head. Ooh, ooh. The 45x की जो होती है ना वो लेंथ बड़ी होती है, फिर वो हिट कर देती है आपके। सेम है स्लाइड्स। And we have yes. A lot of these. There are different regions in the slide that we can focus on later on. 45x पे we'll try to. You have to be very, very, very soft when you are operating on 45, क्योंकि कब दिखेगा और कब नहीं दिखेगा कुछ बोल नहीं सकते। 5x is a very easy process to set your slide on, but once it comes to 45x, things become a lot difficult, and especially with a camera which is zooming in and zooming out. We even have the camera to zoom in, zoom out instead of we zooming into it and try to locate a budding yeast. Ooh. These are all yeast which are very, very micro in sizes.
कैन आई हैव द रिमोट कंट्रोल? कहाँ है भैया? सो हाइड्रा, ये somebody who is having a notebook, अगर किसी ने लाया होगा तो विद अ पेन, जस्ट नोट डाउन कि एक एनिमल सेल का स्लाइड हमको देखना है वापस, with cheek cells, and then we have to again see uh, yeast, budding yeast, which is not clear again. तो budding yeast and animal cell की slide हमको देखनी है. I have even shown you blood cells, right? याद है? Let's have a look at blood cells. The blood cells, we will zoom into it. Hmm? नहीं, ये तो स्टेन ब्लड सेल एकदम प्रॉपर बनाए गए हैं. ब्लड प्रेशर नहीं रे बेटा, वही बोल रहा हूँ, इसको बनाया गया है. वो अपने पास में जो लाइव स्लाइड्स पड़ी हुई है उसमें पेशेंट्स का हम लोग देखते हैं. ये रहा देखो, these are all RBCs, RBC, WBC. ठीक है, जो बालूशाही जैसी इमेज दी जाती है हम लोगों को. नहीं, वही है, बस वो 3D में बनाते हैं उसको. इतना 3D में हम लोग, those which are perfect circles are your RBCs. रेड, एक मिनट में रेड कलर से आपको स्टेन दिखाता हूँ. RBC, ये रहे सर्कल्स दिख रहे होंगे परफेक्ट. अब दिखना शुरू होते हैं एंड एंड में जब जाते हैं ना हम लोग. और ये ब्लड सेल की खासियत होती है कि एंड एंड में दे मेक अ परफेक्ट सर्कुलर स्ट्रक्चर. हालांकि इससे प्रॉपर हम लोगों ने इसकी देखी हुई है ब्लड टेस्टिंग लैब में, जो स्लाइड्स होती है ना, वो इसके अंदर. हम्म. These are the red blood cells or blood cells, we can say. Going ahead, we will have अमीबा. अपने पास में अमीबा के बहुत सारे ब्रीड्स हैं. हम्म. नहीं 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 नहीं, वो एक अमीबा नहीं होता भाई मेरे. हाँ, वो अमीबाज होते हैं. एंट अमीबा, एंटामीबा. या तो हम लोग जाएंगे उसके बाद में काइक्रस अमीबा के पास.
वो भी हमारे पास अमीबा की बहुत सारी प्रजातियां उपलब्ध हैं। हम्म। क्या हो गया होगा? कहाँ घूम गया? देख तेरे को मैं। मेन क्या है, यू कैनॉट एक्सपेक्ट इट इन, वो कौन से शेप में रहेगा? फिक्स स्लाइड नहीं है ना अमीबा की, तो इस वजह से ज्यादा परेशानी होगा। इस वाले से बेटर एक और हमारे पास अलगे है, वो ज्यादा मुझे लगता है कारगर साबित होगी। चारा चारा। दिस इज एन अलगी। चारा। हाँ, ये मारने की दवाई क्या? ये चारा ब्रीड अलगी है। हम्म। क्या करके देखता तो अच्छे से दिखता देखो। बहुत सारे नहीं है भाई मेरे, एक ही है। हाँ। काय का बैक्टीरिया लाया था भैया आपने? अच्छा, बैक्टीरिया खुद बताए थे आपको कि वो बैक्टीरिया है? दिस इज चारा अलगी। देन मॉस्किटो लार्वा। नहीं नहीं, मॉस्किटो लार्वा नहीं अभी, बाद में देखते हैं। हाँ, ये ऐसे एज गुड एज अ कीड़ा, इट्स अपियरिंग। चारा अलगी। देन वी हैव coccus bacteria that causes pneumonia. They're at 69. 69. A few more slides, motor nerves and all, artery, veins, 60, 60, 61, Euglena, Bacillus. अरे ये कहाँ है? 61, 69, कॉकस बैक्टीरिया। कॉकस नाम का बैक्टीरिया है, दिस बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग निमोनिया। Now we have selected few of the slides particularly for health and diseases. Eight standard को एक part आता है health and diseases का, तो we have selected that.
ये बैक्टीरिया बहुत छोटे से साइज में, तो वी कैन सी और स्पॉट वन ऑफ द कॉपर बैक्टीरिया। हम्म। सोनोडा, इधर इधर इधर, एक मिनट। सर वो पिंक स्टेन है ना? सर ऐसे लग रहा हो तो फायर स्टेन। वही ना, बैक्टीरिया में ना बहुत छोटा होता है साइज में। सर कितना सेल्स है तो हाँ, मेनी बैक्टीरिया आर ब्लड सेल्स ऑब्वियसली। छोटे होंगे तभी तो कुछ बैक्टीरिया जो है हमारे ब्लड सेल्स को अटैक कर पाते हैं। इसमें इसी पे ना, वो अपनी अपनी आंखों पे है अभी। दिस इज कॉकस। सर वो भी डॉट डॉट। बेटा बहुत माइक्रो है साइज में, हम लोग अगली बार क्या करेंगे, 100x पे जाएंगे। ट्राई। ओके, सो वी आर हैविंग कॉकस बैक्टीरिया हो गया। इट कॉजेज निमोनिया। पेनिसिलियम आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, देखा है क्या रे? पेनिसिलियम हाँ सर। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो मिलते हैं। फिर कॉकस के बाद अलगे का एक और ब्रीड देखते हैं, कॉलरा। No, it actually helps us to visualize that how small the world is। क्या छोटी होती है दुनिया। हम्म। स्टेन नहीं है प्रॉपरली। पेनिसिलियम 49। The world is so small। पेनिसिलियम ग्रीन कलर का नहीं है बेटा, ग्रीन स्टेन है वो। स्टेन ग्रीन, ब्लू, पिंक। येलो कलर का दिख रहा है। दिस इज पेनिसिलियम। नहीं, वो एक अलग वैरायटी थी ना, कुछ ए से नाम था। दिस इज पेनिसिलियम। पेनिसिलियम मतलब लाइन लाइन लाइन। ये पूरे यहाँ लाइन 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 जो फाइबर्स निकल के आ रहे हैं उसके। पेनिसिलियम बेटा, द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलियम इन एप्पल। 10th स्टैंडर्ड वाले बता पाएंगे व्हाट इज पेनिसिलियम? 10th स्टैंडर्ड वाले कुछ नहीं बताते, स्टेट बोर्ड वाले। सीबीएसई वाले रहे क्या, वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ कुछ ना कुछ बड़बड़ करते। So the threats of penicillium can be easily seen. Penicillium discovery सर वो सबसे बड़ा मेडिसिनल डिस्कवरी था पेनिसिलियम, बट देन ठीक है, चलो 10th स्टैंडर्ड वेल, किससे हुआ था? गलती वलती कुछ नहीं थी। नाउ द हाईलाइट ऑफ द डे। बेटा आपके लीवर पे, I'll ask a question to 10th स्टैंडर्ड अगेन इफ दे कैन आंसर दिस। हमारे लीवर के अंदर रिसाइड करने वाला पैरासाइट कौन सा है? सर ये जो आप दिखा रहे राजरत्न, थैंक्स फॉर बीइंग सो स्मार्ट। आई होप ये स्मार्टनेस आपकी एग्जाम में काम में आए। ठीक है। 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड जल्दी, इससे पहले कि मैं फोकस करूं। पेनिसिलियम का, वो आप जो बोल रहे हो पेनिसिलियम का, जल्दी। 10th।
देन जल्दी। इट्स लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक नाम का ये पैरासाइट ह्यूमन बॉडी के लीवर में जाके चिपक जाता है। इतना बड़ा नहीं बेटा, यू आर सीइंग इन माइक्रोस्कोप, ये इतना छोटा रहता। ठीक है, और ये ट्रांस सेक्शन है उसका। कट किया लीवर फ्लूक, अरे पैरासाइट है, अंदर जाके चिपक जाता है और हमारे चीजों को खाते रहता है। इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आवर बॉडी, पुट इट ऑन 10x। अभी 10x पे डाला है मैंने, वो 5x पे था। हाँ ठीक है बेटा, आप इसको डीएनए बोल के याद रखना। दिस इज लीवर फ्लूक, एंड दिस इज ट्रांस सेक्शन ऑफ लीवर फ्लूक। ट्रांस दो तरीके के सेक्शंस होता है, ट्रांस एंड हाँ हेड रीजन। टेंथ में एक्चुअल में, टेंथ को सिलेबस में ही है लीवर फ्लूक, अगर टेंथ को याद हो तो। कि वो भी याद नहीं है कि ये सिलेबस का पार्ट है। अच्छा चलो, भगवान भला करे आपका। 45 पे तो बहुत मतलब, द हेड रीजन stays inside the liver. It is a pathogen. It is a parasite, not a pathogen, but a parasite. मस्त टेल है उसकी एक्चुअल में। इट्स नॉट अ टेल बट ट्रांसेक्शन होने की वजह से इस तरीके का कटिंग उसका हुआ। लीवर फ्लू का पैरासाइट ऑपरेट करके निकालना पड़ता है, लीवर में रहता है। सर किसने लीवर से निकाला? मेरे लीवर से निकाला था हमने रिसेंटली। बहुत दर्द हो रहा था मेरे पेट में अचानक। The highlight of the day is the larval stage of mosquito, मच्छर का छोटू सा बेबी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, बट वो कुछ ना कुछ हमें सिखा के गया है। उसकी शहादत को हम हमेशा याद रखेंगे। You clearly see the mouth, the eyes that were being developed of the mosquito. Yes. And as soon as we move ahead, okay, this is the whole segmented body. And the tail end region, which will then be converted into flaps, and the legs and hinge joints and all. ठीक है, अगर मतलब इसको 10x पे रख के तो कोई ऐसे ज्यादा पार्ट्स कवर नहीं होता है, बट ठीक है। द सेगमेंट, यहाँ पे ये सेगमेंट्स दिख रहे हैं, दिस आर द जॉइंट्स। उसका जो सिस्टम होगा, पंख अभी ग्रो लार्वल स्टेज पे है ना। अगेन द हेड रीजन, द हेड रीजन, द आई रीजन, टेंटिकल बीइंग डेवलप्ड सामने। And he also needs a haircut up. There are many slides that I have not shown क्योंकि कोलेन कायमा, पैरेन कायमा, ये सारी चीजें, फ्लोएम्स, वैस्कुलर बंडल, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आगे आप लोगों को आने वाली है। जैसे जाइलम फ्लोएम आपको पता होगा, बट उनके ट्रांसेक्शंस अभी आपको नहीं आते, 9th स्टैंडर्ड में फिर उसके बाद में आते हैं।
सेल डिविजन्स की कुछ स्लाइड्स है जो 8th स्टैंडर्ड को दिखानी है, इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। तो ऐसे कई सारी स्लाइड्स जो है ये आज हम लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि 45 मिनट्स का एक टाइम पीरियड हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग करेंगे, and then we are finished with those 45 minutes. But yes, we are having 100 odd slides, and these 100 odd slides will be available for you guys. You can take it to the school during your science exhibitions and all to demonstrate few things if you want. But then हाँ, उसका थोड़ा ध्यान रखना। परचेस किए बोलो, ठीक है, या परचेस, हाँ, बट इन ऑन 28th ऑफ ये मिलता है स्लाइड्स आपको, जनरली हर जगह पे मिलती है। दिस इज एक्चुअल में आपको बताऊँ ना, तो इसमें नर्व सेल्स एंड ब्लड सेल्स वगैरह ये सब है। ऑर्टा, हार्ट के सेल, लीवर सेल के टिश्यूज वगैरह, बहुत सारे टिश्यूज इसके अंदर है जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने हैं। बट नाउ एज इट वाज द फर्स्ट सेशन एंड वी हैव सीन द स्लाइड्स का सेशन हम लोगों ने पहली बार रखा है, इस वजह से आई थॉट कि थोड़ा जनरल जनरल स्लाइड्स रखता है, नॉट ज़्यादा। बस एक बडिंग ईस्ट, आई गेस विल बी रीलोकेटिंग बडिंग ईस्ट और एनिमल सेल दैट विद चीक सेल। हाँ, वो एक बैक्टीरिया अगर कोई देखना है, इकोली बैक्टीरिया, बैक्टीरियम्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो वो अगर कोई देखने हैं हम लोगों को, वो भी हम लोग देखेंगे। ये देखो, जैसे ये ट्रांसेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, so you have to actually grow up a bit to understand all those transections. ये स्पाइनल कॉर्ड की ट्रांसेक्शन है। ट्रांस मतलब, हाँ वही बोल रहा हूँ ना कि सपोज इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो अगर इसको ऐसे कट करो तो वो ट्रांस सेक्शन बनता है, और ऐसे कट करो तो कर्व सेक्शन बनता है, क्रॉस सेक्शन, टॉप से एंड साइड से, तो ये ट्रांस सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का। सीधा कट किया हुआ है। वी इवन हैव नर्व सेल्स, नर्व्स आपको पता है ना, नर्व्स कि नहीं? नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स, वेरी गुड। इफ यू हैव a bit of time to watch nerve cells, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड, अगेन आई एम सेइंग 10th स्टैंडर्ड है, बार बार 10th स्टैंडर्ड ने आज उनके हिसाब से थोड़ा सा टाइमिंग का हम लोगों ने एडजस्टमेंट किया था। 10th स्टैंडर्ड आपकी जो वो क्लास कब है? मैं तुम्हारे तुम्हारे टाइम पे भी आ जाना, देख लेना, नहीं तो ऑनलाइन चालू है अगर आपको लगे। हाँ हाँ, चलेगा ना, मतलब यहाँ से चले जाना वापस वो दूसरे सेशन के लिए भी। ये तुम्हारे स्लाइड्स में जो है ना, ह्यूमंस एंड ऑल, काय म्हणता रे त्याला, ह्यूमन मोनट्स एंड ऑल, वो सब निकाले। These are nerve cells. मोटर नर्व जो होती है ना, Sir, where is that, sir? अब इसको हम लोगों को 100x पे लगा के देखना पड़ेगा। दिस इज ऑल द चैनल ऑफ नर्व सेल, जिसमें आपको वापस में पूछ रहा हूँ, ये जो डार्क पैच दिख रहे हैं, डार्क ब्लू कलर के, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके अराउंड जो होंगे आपके डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल। तो सिंगल एक को लोकेट करने के लिए यहाँ पे 2-3 स्लाइड्स है, वही मैंने बताया कि वी हैव जस्ट सीन अभी फिलहाल में जो स्लाइड्स मेरी दिव्या को 5th स्टैंडर्ड की बेचारी बच्ची वो सोच रही है कि हम लोग क्या देख रहे हैं। क्या रे दिव्या, है ना? So how micro is a word? This slide will just have a green dot on it. As soon as we put it into a microscope, it forms a structure.
And that is what is written here. By the help of microscope, there is nothing so small as to escape our inquiry. Hence, there is a new visible world which is discovered for understanding. So that's what a microscope does. It shows ऑनियन पील और प्लांट सेल में हम लोग जब अभी देखिए यहाँ पे ये टॉन सेक्शन बना दिया, कट हो गया है वो. बट देन ऑनियन पील and plant cell, obviously they will look similar because plant cells have got well defined cell wall. What you differentiate in onion peel and or plant cell and animal cell, क्योंकि animal cell को well defined boundaries and all and cell walls नहीं होने की वजह से इतना well defined structure उसको locate कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है. बट देन मे बी ये स्लाइड जो है बहुत दिनों से है तो कुछ डैमेज हुआ होगा. We'll again take out the swabs from somebody's mouth and keep doing this because we are having the ready setup with us and we can do it anytime we want. जब भी हम चाहे हम कर सकते हैं, हमारा ही किट है. ओके, क्यों लेट आया बेटा शिंदे साहब? हम्म.